Children, today I will discuss some important chemical compounds. Already we have gone through the studies of acids and bases, even indicators, natural indicators, synthetic indicators, universal indicators, concentration of acids and bases, and pH, and rest of all the discussion already we have gone through. Today I will discuss some important chemical compounds. Children, at very first I want to discuss the first one, that is common salt NaCl. आप सभी जानते हो कॉमन साल्ट NaCl कैसे कंपाउंड है, आयनिक क्रिस्टल है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ऐसा आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो. कॉमन साल्ट NaCl इज prepared by the neutralization reaction. कौन सी रिएक्शन से बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. When strong base NaOH, sodium hydroxide, treated with hydrochloric acid. Strong acid means when there is the treatment of strong base NaOH with strong acid HCl, there is the formation of NaCl, means common salt, sodium chloride and water. This reaction is overall called neutralization reaction. It is okay. So common salt is neutral. Its pH is about 7. Neutral का कितना pH होता है? 7 होता है. And this common salt is used in our food stuffs, food materials, in our table, dining table. That is why this is also called as table salt. It is okay. Now important chemical from NaCl. इससे कुछ और भी important chemicals बनाए जाते हैं, derivatives बनाए जाते हैं. So one of the important chemical which is manufactured in large scale, that is sodium hydroxide NaOH, so called caustic soda, which is strong base. वैसे ये जो NaCl है ये तो हमने आपकी लेबोरेटरी प्रोसेस बताई, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैगून फॉर्मेशन से बनाते हैं. ओशन वाटर, जो समंदर का पानी है उसमें बहुत ज़्यादा NaCl, KCl, MgCl2 ये साल्ट होते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. तो नियर बाय ओशन, कोस्टल एरियाज में, समंदर के किनारे बहुत छोटी छोटी लैगून्स बनाई जाती हैं. लैगून्स जानते हो, जैसे आप छोटी आप किचन गार्डन में क्यारियाँ बनाते हो आलू गोभी बोने के लिए, चारों तरफ से 2-2, 3-3 फीट की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और फर्श बना दी जाती है और उसमें समंदर का पानी, ओशन वाटर भर दिया जाता है. और कोस्टल एरिया में बहुत गर्मी होती, समंदर का पानी क्या होता है, वेपराइज हो जाता है और फिर उसके बाद साल्ट मिलता है, भारी मात्रा में साल्ट मिलता है लार्ज स्केल में. उसे ट्रक्स में लाद के, बड़े बड़े कंटेनर्स में लाद के फिर लाते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं और प्यूरिफिकेशन के बाद में हमें बहुत सारा NaCl ईजीली मिल जाता है. इट इज़ ओके, बट दिस रिएक्शन इज possible in our laboratories. When we treat NaOH with HCl, there will be the formation of NaCl and H2. Correct? अब ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और NaCl का pH कितना होता है? न्यूट्रल. मीन्स दिस साल्ट इज कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल साल्ट. टेबल साल्ट भी इसे दूसरा नाम जानते हैं. नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. चिल्ड्रन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड विद NaCl? देयर इज aqueous solution of NaCl, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्राइन. मीन्स NaOH इज प्रिपेयर्ड by electrolytic decomposition of brine solution. Brine solution is an aqueous solution of NaCl, means aqueous solution of NaCl. So
I mean NaOH prepared by electrolytic decomposition of brine solution. You know, brine solution is the aqueous solution of NaCl. Means when 2 NaCl plus 2 H2O, means this is the combination, this is brine solution, undergoes to electrolytic decomposition. There will be the formation of NaOH, caustic soda, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी. इट इज ओके. कैसे बनेगी जरा देखिए. मींस द डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl will lead formation of Na plus ion and Cl minus ions. Likewise H2O will provide hydrogen ion H plus and OH minus. So there will be, I mean, the approach of hydrogen ion towards cathode. ये क्लास 10th में आप डिटेल पढ़ोगे. नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है उसमें कैथोड होता है, एनोड होता है. कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है. तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड पे. Means hydrogen ion approaches to cathode and gains electron. So ये reduction हो गया and reduces into hydrogen atom. Two hydrogen atom by covalent bonding makes hydrogen molecule. तो molecular hydrogen gas evolve हो जाती है. कहाँ पे? At cathode. Correct? Now at anode what happens? Two chloride ions releases electron and becomes chlorine molecular gas. So during electrolytic decomposition at cathode hydrogen gas evolves and at anode chlorine gas liberated. तो क्लोरीन गैस कहाँ पे निकलेगी? एनोड पे. और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी? कैथोड से. और रिमेनिंग कंपोनेंट्स क्या बचेंगे? Na plus and OH minus. This is NaOH. So we can say the very important compound, so-called derived product of NaCl is caustic soda, that is NaOH. This is a strong base, so-called alkali, and this is prepared by the electrolytic decomposition of brine solution. What do you mean of brine? Brine is nothing. Brine is the saturated aqueous solution of NaCl, and when it undergoes to electrolytic decomposition, then it provides chlorine gas at anode, hydrogen gas at cathode, and remaining byproduct NaOH. It is okay. So commercial, this is the commercial preparation of NaOH, because NaOH is very useful compound, and these all products are useful. Means hydrogen, chlorine, and NaOH. Hydrogen used as a fuel gas, used in manufacturing of ammonia. Likewise chlorine used in the formation of CFC and manufacturing of pesticides, PVC, polyvinyl chloride, bleaching powder, hydrochloric acid, etc. Means number of products we can prepare with the help of hydrogen, with the help of chlorine, and even with the help of sodium hydroxide. This sodium hydroxide is used in paper industry, in soap industry, in manufacturing of detergents, in manufacturing of artificial fibers. So all these products are very important chemically for you. So that is why go through the preparation of common salt and the preparation of NaOH by electrolytic decomposition. Now children, the next salt after common salt for our study is bleaching powder. Bleaching powder. The formula of bleaching powder is calcium oxychloride, means CaOCl2. It is okay. And this bleaching powder is manufactured when there is the excess treatment of chlorine gas in lime water. Means CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2. It is okay. So this is the manufacturing, this is the preparation. And what are the actual uses of bleaching powder? You know, it is used as disinfectant to clean water. It is okay. And for killing of the weeds. Weeds जानते हो ना? Weedicide,
खरपतवार खेतों में हो जाते हैं, आप फसल पैदा करते हो, तो ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डालते हैं तो वीड्स, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपकी एक्चुअल क्रॉप ग्रो करती है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा यूज़ है, कलर को डिसअपियर कर देती है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी और कॉटन इंडस्ट्री में भी एज ए ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर का बहुत इस्तेमाल होता है। नाउ एज ए ऑक्सीडेंट भी इस केमिकल का बहुत यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा यूज़ इसका है, जितने बड़े बड़े शहर हैं, नदियों के किनारे हैं, और उन शहरों को मैक्सिमम वाटर सप्लाई किससे करी जाती है? रिवर से। रिवर वाटर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मिले होते हैं, इनमें बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, और इन सबको किल करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। देन दैट वाटर इज सूदिंग फॉर आवर डोमेस्टिक यूजेस। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर दूसरा साल्ट है। नाउ द थर्ड वन इज अ बेकिंग सोडा। Baking soda is called sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Its formula is NaHCO3. Correct? Children, how we have to manufacture this one? Its manufacturing is by taking the brine solution. Brine solution is the solution of NaCl in water. It is okay. When we take brine solution, then first we treat this brine solution with कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय अमोनिया गैस। पहले हम ब्राइन सॉल्यूशन को किससे ट्रीट कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और फिर उसके बाद अमोनिया गैस उसमें डिसॉल्व करेंगे। फाइनली वी विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3। मीन्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होगी? ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे। ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पहले एक्सिस में डिफ्यूज़ करेंगे, मिलाएंगे। इसकी कुछ देर बाद जब फॉर्मेशन हो जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह की, तो एक्सिस में अमोनिया भी इसमें मिला देंगे। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो भी रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। एक प्रोडक्ट सॉलिड हो जाएगा, दूसरा एक्वस रहेगा, उसे हम फिल्टर करके निकाल लेंगे, और इस तरह से बेकिंग सोडा की भी प्रिपरेशन हो जाती है। बेकिंग सोडा होता कैसा है? This is white crystalline solid. This is white crystalline solid. This is sparingly soluble in water. ये रेडियली soluble नहीं है, बहुत धीमे धीमे और आहिस्ते आहिस्ते पानी में डिसॉल्व होता है। sparingly soluble. This is not readily soluble like NaCl. And it gives sodium carbonate after decomposition. अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें, हीट दे दें, then twice NaHCO3 undergoes to Na2CO3 plus CO2NH2, means sodium bicarbonate white crystalline solid है, पानी में धीमे धीमे घुल जाता है, sparingly soluble है, और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं? बेकिंग सोडा बहुत यूज़ है, कॉमनली हम लोग इसे अपनी फैमिली में किसी न किसी तरीके से इसे यूज़ करते हैं। जैसे जो बेकिंग सोडा है एज ए एंटासिड, अगर खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी फील हो रही है, देन जरा सा आप बेकिंग सोडा पिंच भर, एक चुटकी भर पानी में डाल के पी सकते हो, इमीडिएटली यू विल बी गेटिंग रिलीफ। यू आर वेरी फेमिलियर टू गो थ्रू योर मेडिसिनल एक्ट थ्रू इनो बुलबुले, बहुत पीते हो, खाते हो। इनो बुलबुले में कुछ और नहीं है, सिंपली दिस एंटासिड बेकिंग सोडा विद सम अदर इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, इट इज़ ओके। देन क्लींजिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, चांदी के जो जेवर हैं, सोने के तो जेवर इससे नहीं साफ कर सकते, बट जो चांदी के जेवर हैं बेकिंग सोडा लगा के रगड़ के साफ करेंगे आप, तो वो भी कुछ साइन करने लगते हैं, उनकी क्लींजिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा बहुत यूज़ होता है। सबसे बड़ा यूज़ इसका है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर देखिए, आए दिन आप ढोकला बनाते हो, जाने क्या क्या चीज़ें बनाते हो, बहुत शॉर्ट खाने बनाते हो, किचन में आपकी मम्मी बनाती हैं, तो अल्टीमेटली बेकिंग पाउडर जो बनता है, बेकिंग पाउडर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, और टार्टरिक एसिड के साथ इसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज
बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में या प्रिपरेशन में और टूथपेस्ट में और क्लींजिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स में, साथ में एंटासिड की फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा यूज़ है, बेकिंग सोडा है ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू मेक फायर एक्सटिंग्विशर। आप देखते हो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, आपके स्कूल में भी बहुत जगह लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर। कभी कोई अनहोनी हो गई, अगर आग लग गई तो इमीडिएट उसको बुझाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, एंड इन दिस इंस्ट्रूमेंट देयर इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। Children, today we have gone through the study of some important chemical compounds, and out of all the important compounds related to your syllabus, 3 compounds including any which I have discussed today. Rest I'll give the detail tomorrow. Thank you. Have a nice day.